So fundamental rights are the basic rights which were guaranteed by the Constitution of India to its citizens. So previously there was seven fundamental rights, but after the 44th Amendment Act 1978, right to property was deleted and made a legal right under Article 300A. And Article 300A is present in Part 12 of the Indian Constitution. So at present, there are only six fundamental rights. So right to property is no more a constitution right, but made a legal right. So here we have to understand that what is the difference between legal right and a fundamental right or a constitution right. The simple difference between the legal right and a constitution right is that legal right is managed through an ordinary law and constitutional right is managed through an constitutional laws. So state can curtail your legal rights, but state don't have any power to curtail your constitutional right. But under some circumstances, state can do so. So we will talk about that in a further videos. So if we talk about the right to equality, so under right to equality, there are five right articles. Under Article 14, it talks about the equal equality before law and equal protection of law. And Article 15 talks about the prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. And Article 16 talks about the equality of opportunity in matter of public employment. And Article 17 talks about the abolition of untouchability and prohibition of its practices. And Article 18 talks about the abolition of titles except military and academics. We got to know that there are five articles in right to equality, but the matter is that how to remember all this. So here I have a short story for you. So what is the real meaning of equality? It provides an equal opportunity and it removes the discrimination. So if there is equality, there will be no discrimination. So if there is equality, there is no discrimination, then everybody get an opportunity for an employment. So through equality, you have to remember the equality before law, and through discrimination, you have to remember the discrimination on the some of the grounds. And through opportunity, you have to remember the opportunity in matter of public employment. So if there is equality, there is a no discrimination, and if there is a no and if there is a opportunity for everyone, then the poor section will not face any form of untouchability. So through this you have to remember the untouchability and its practices. So through this, when there is equality, there is no discrimination, everybody will get opportunity and the poor will not face any sort of untouchability. Through this, the poor section will also get a chance to recruit in the army and to win the titles. So this is a very simple and a very short story which you can note down or you can just recall in your mind when you need it. We talk about right to freedom. Then under right to freedom, there are four articles, but Article 21 have a subpart and it makes it a head of five articles. So Article 19 talks about the protection of six rights regarding freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence, and profession. So these are the rights which will be protected under Article 19. And Article 20 protects the in respect to a conviction for offences. And Article 20 and Article 20 which is a protection of life and personal liberty. And Article 21A, which is a subpart of Article 21, talks about the right to elementary education. And Article 22 talks about the
protection against arrest and detention in certain cases. So the matter is that how to remember all these things. So first thing you have to remember that under right to freedom there are 5 articles. So you must have to include the 21A also, because if you don't include 21A also, 21A, then you will be left it out in the real exam. So let me share with you a short story. So there is a lawyer who got to know the real meaning of freedom, and he got that we are a free man and we have certain rights. So when he got the meaning of freedom, then he don't do any offense. And when a lawyer who got a freedom and got to know the real meaning of freedom, and when he got an and when he don't do an offense, so technically he is saving a life of others. Okay, so when he is saving a life of others because he is a educated man. So a lawyer who don't do any offense, he is saving a life of others because he is the educated man. And through this education, he is saving a he is saving those person who were already arrested. So this is a very short story that you can remember or note down आर्टिकल 23 और 24 के बारे में। तो आर्टिकल 23 और 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर जो है वो आते हैं। तो इन दोनों को जो है वो ज़्यादा याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, ये सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 23 जो है वो अगर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात कर रहा है, उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है, तो एक्सप्लॉयटेशन किससे होनी चाहिए? एक्सप्लॉयटेशन जो होनी चाहिए जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से होनी चाहिए और फोर्स्ड लेबर से होनी चाहिए। और आर्टिकल 24 में वो कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए चिल्ड्रंस की जो फैक्ट्री में है। और इसमें अगर हम थोड़ी एक ट्रिक लगाएं तो ये आप ये कह सकते हैं कि आप एक ही शॉर्ट ट्रिक ये दिमाग में रख सकते हैं कि एक जगह रोड है, वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक है, वहाँ पे जो ह्यूमन लेबर्स हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन उन लोगों को जो वो फैक्ट्रीज में जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि उनके साथ जो है वो बच्चे हैं। तो इस चीज़ को आप ऐसे जो है वो दिमाग में रख सकते हैं। 2 आर्टिकल्स हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। रिलीजन और उसमें जो है वो 4 आर्टिकल्स आते हैं। तो 4 आर्टिकल कौन-कौन से हैं? आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। तो आर्टिकल 25 जो है उसमें बताया गया है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिसेस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। और आर्टिकल 26 में वो कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, क्योंकि भाई अगर आपको रिलीजन को जो है वो प्रैक्टिस करने का दे रहे हैं, तो उसको आपको जो है वो अपने रिलीजन्स के जो अफेयर्स होंगे उसको भी जो आपको मैनेज करना होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको कोई भी जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होगा, ये उसमें वो कहा है। और साथ में ये भी कहा है कि कोई भी किसी को भी जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडिंग नहीं है कि वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है वो उनको जो अटेंड करे। लेकिन यहाँ पे कुछ जो एक्सेप्शंस हैं वो डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो अभी इसको देख लेते हैं कि क्या जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए इसको दिमाग में रखने के लिए। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया आपको जो है वो 4 आर्टिकल्स जो है वो दिमाग में रखने हैं कि जो फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसमें जो सिर्फ़ 4 आर्टिकल ही हैं। और उन 4 आर्टिकल्स में जो है वो पहला को आपको याद रखना है कंसाइज़, कंसाइज़ एंड फ्री थ्री फ्री 3 P ऑफ रिलीजन, कंसाइज़ एंड फ्री 3 P ऑफ रिलीजन। अब ये 3 P क्या है? प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो जब ये आपको ये आपने ये दिमाग में रख लिया, उसके बाद में आपको जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका रिलीजन होगा तो आपको उसको मैनेज भी करना होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको जो पैसा मिलेगा उसमें से आपने कोई भी जो है वो टैक्स नहीं देना होगा गवर्नमेंट को। और साथ में जब आपने वो टैक्स नहीं देना होगा तो अगर आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उसमें अगर कोई कोई और रिलीजन का बच्चा है तो उसको कोई भी फ़ोर्स नहीं कर सकता कि आप जो है वो उसकी अ, उस एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्ट लीजिए। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, इसकी डीप में एनालिसिस है, लेकिन इसको मैं थोड़े शॉर्ट में आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब कोई बच्चा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन लेता है, तो उसके पहले वो एक फॉर्म जो है वो पेरेंट्स को साइन करना होता है।
तो सर फॉर्म में जो है वो प्राइवेट, ये मोस्टली जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि उस फॉर्म में वो सब कुछ जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ भी आती है कि अगर आपका बच्चा जो है वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहा है, तो अगर वहाँ पे कोई रिलीजियस जो है वो प्रेयर है या कुछ एक्टिविटीज़ है, उसमें जो पार्ट लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जो है वो उस फॉर्म को जो है वो साइन किया हुआ है और स्कूल की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको माना हुआ है। तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शंस है। बट जनरली यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है वो उनको जो है वो कोई वो बाउंड नहीं है कि वो किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्ट ले। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हालाँकि अब मॉडर्नाइज़ेशन हो रही है, तो हर कोई ये जो चीज़ें हैं जो इतनी मायने नहीं रखती। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो पेरेंट्स जो होते हैं जब अपने बच्चे को किसी स्कूल में जो है वो एडमिशन करवाते हैं, तो जिस फॉर्म को वो साइन करते हैं, तो उस फॉर्म में जो स्कूल की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसको जो है वो फुलफिल करना होता है, उसको वो साइन करके देते हैं। तो इसमें जो है ये अपने आप ही जो है वो इसमें आ जाता है। आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू। आर्टिकल 29 कहता है कि भाई पहले सिंपल आप देखिए कि कल्चर और एजुकेशन राइट होता क्या है। देखो फंडामेंटल राइट क्या किया हुआ है, उसने कुछ बेसिक राइट्स जो है वो गारंटी की हुई है किसको, अपने सिटीजन्स को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, ठीक है, जिसमें हम 6 फंडामेंटल राइट हमने जो है टोटल आते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो 5th फंडामेंटल राइट है, ठीक है, 5th फंडामेंटल राइट आपका कल्चर एंड एजुकेशन राइट, ठीक है। अब ये दो चीज़ों से, जैसे इसका नाम ही आप जो है वो देख सकते हैं, ये कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या किया, ये फंडामेंटल राइट जो है वो आपका प्रिजर्व करता है क्या, कल्चर। कल्चर किन लोगों का कल्चर जो है वो ये प्रिवेल करेगा, प्रिजर्व करेगा, ये आपकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना हमारे इंडिया में, माइनॉरिटीज़ है ना, तो ये इनका कल्चर जो है वो प्रिजर्व करता है, ठीक है। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में क्या है, इंडियन सोसाइटी एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए ये राइट जो है वो बनाया गया है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो गारंटी किए गए हुए हैं राइट्स जो माइनॉरिटीज़ को किए हुए हैं ना, तो किसको देख के किए हुए हैं, अपनी डाइवर्सिटी को, हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना, टू इंक्लूड द मार्जिनल एंड वंस टू प्रोटेक्ट देयर, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व, टू प्रोपोगेट देयर कल्चर, ठीक है। भाई कुछ लोग हैं हमारे जैसे माइनॉरिटीज़ हैं, इनके कुछ कल्चर्स हैं, है ना, इनके कुछ कल्चर्स हैं, इनके कुछ ऐसे कल्चर्स हैं कि भाई जो अपने आप में यूनिक है, ठीक है। तो उन कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 29 पे जाते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 आपको कहता है कि भाई आपका जो, इसमें ये बताया हुआ कि भाई आपका जो आर्टिकल 29 सिंपली ये कहता है कि जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, माइनॉरिटी का राइट है क्या, राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स। सिंपल आपने याद रखना है, आर्टिकल 29 का जो सब क्लॉज 1 है वो किस, आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का पहला इंटरेस्ट कौन सा, उनका जो है वो आपका कल्चर, एक मिनट, उनका जो आपका कल्चर, ठीक है, उनकी लैंग्वेज और उनकी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है, जो उनके उनके टेक्स्ट होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो जो उनके कल्चर को दर्शाते हैं, ठीक है। इसी में माइनॉरिटीज़ को दूसरा राइट आता है कौन सा, उनका जो है वो, उनको जो है वो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो द स्टेट शेल नॉट डिनाई एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय इट, ठीक है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, उसमें एडमिशन के लिए किसी भी पर्सन को जो वो, उसको जो है वो डिनाई नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस बेसिस पे कि भाई वो जो है वो किसी रेस से, रिलीजन से, कास्ट से, लैंग्वेज से और किसी अदर फॉर्म से, ठीक है, इन चीज़ों से जो है वो उसको जो है वो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है वो एडमिशन डिनाई नहीं की जाएगी। सिंपल आपको इतना याद रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 30 पे। आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है आपका कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखो अब माइनॉरिटीज़ को हमने राइट क्या दिया है कि भाई, हम कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या राइट दिया कि भाई आप जो है वो अपना कल्चर प्रिजर्व करिए, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करिए, आपके जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रिजर्व करिए, है ना। और उनको जो है वो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सिर्फ इस बेसिस पे जो है वो आप एडमिशन के लिए ना नहीं कर सकते कि भाई वो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या आप सॉरी रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या किसी एनी और एनी ऑफ द अबव, ठीक है। सिर्फ ये 4 चीज़ों के बेसिस पे आप जो है वो किसी भी माइनॉरिटी को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। बट आर्टिकल 30 क्या कहता है कि भाई आप जो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी जो है वो खुद को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, देखो
जो आपका आर्टिकल 30 को हम क्या कहते हैं, चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमने आर्टिकल 31 में क्या किया है, हमने जो है वो आपका जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं ना, जो और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, उनको कहा हुआ है कि भाई अपना जो है वो राइट टू एस्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हमने जो है वो आर्टिकल 30 से क्लॉज 2 में हमने ये कहा गया है, द स्टेट शेल नॉट व्हेन ग्रांटेड एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इज अंडर द माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज। देखो हमने पहले क्या कहा, हमने कहा कि भाई आप अपना जो है वो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स जो है वो इस पे जो है वो आप एडमिशन डिनाई नहीं करेंगे किसी को भी, ठीक है। ये हमने आर्टिकल 29(2) में कहा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 में कहा कि भाई अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट प्रोवाइड कर रही है स्टेट को, जो आर्टिकल 12 में आती है, अगर वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रांट प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि भाई वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो आर्टिकल 30 के तहत जो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है वो है, ठीक है। केवल वो इस पर उनको डिनाई नहीं करेगी कि भाई वो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, यहाँ जो है वो रिलीजियस और किसी लैंग्वेज के बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं किन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये रहे आपके जो है वो हमने ये देख लिया, आपका जो है वो कल्चर एंड एजुकेशन राइट भी आपका आज कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल 31 से। देखो आर्टिकल 31 जो है ना, 31 आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको जो है हमने ना यहाँ से डिलीट कर दिया है, ठीक है। कैसे डिलीट किया, देखो आर्टिकल 31 में क्या होता था कि जब आपका ये जो आपका बड़े बड़े ज़मींदार थे ना, जब बड़े बड़े ज़मींदार थे, गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो नेहरू गवर्नमेंट थी, नेहरू गवर्नमेंट ने क्या किया था कि लोग जो बड़े बड़े ज़मींदार थे ना, उनको उनसे ज़मीन लेके, है ना, तो वो गरीबों में बांटी थी, ठीक है। तो इस चीज़ के खिलाफ जो है वो ज़मींदार कहाँ के कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास राइट है पूरा अपना राइट टू प्रॉपर्टी का, ठीक है। और कई लोग तो ऐसे थे उन्होंने अपने जो है वो नौकरों के नाम, आगे अपने जो है वो रिश्तेदारों के नाम जो है ज़मीनें कर दी थी, ठीक है। और कहा था कि भाई हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमने लैंड रिफॉर्म्स की थी इंडिया में, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स आपको पता होगा, तो लैंड रिफॉर्म्स के तहत जो है वो उस चीज़ को एड्रेस करते हुए ये यहाँ से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से डिलीट किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इसकी जो आपकी अमेंडमेंट है वो देख लीजिए आप यहाँ पे दी हुई है। देखो हमने क्या किया था, आर्टिकल 31 को यहाँ से डिलीट किया। डिलीट कैसे किया, हमने जो अपनी 44th अमेंडमेंट की थी 1978 में, ठीक है। 31 आर्टिकल हमने जो राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पे 44th अमेंडमेंट के तहत हमने डिलीट किया। हमने इसको यहाँ से उठा के कहाँ पे डाल दिया, आर्टिकल 300A में। उसके बाद क्या हुआ, पहले जो हमारा फंडामेंटल राइट था, पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, हमारा जो फंडामेंटल राइट था, उसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, उसको हमने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया, सॉरी हाँ आपका जो है वो लीगल राइट कर दिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट से चेंज करके हमने क्या कर दिया, इसको एक लीगल राइट कर दिया, ठीक है, लीगल राइट कर दिया, ठीक है। अब लीगल राइट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो आपको जो है वो सिंपली गवर्नमेंट के पास की पावर आ गई कि भाई अगर हम किसी से ज़मीनें लेते हैं तो वो फंडामेंटल राइट उसका हर्ट नहीं होगा, उसका लीगल राइट होगा। और गवर्नमेंट जो है आपका लीगल राइट जो है वो हर्ट कर सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक लॉ पास करेगी पार्लियामेंट से और जो है वो कानून बना देगी, तो उससे जो है वो आपका लीगल राइट हर्ट हो या कुछ भी हो, उससे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ अगर गवर्नमेंट जो है वो आपका फंडामेंटल राइट हर्ट करती है तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आप उस दिक्कत को एड्रेस करने के लिए कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए आपका ना जो अगला आपका जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है हमारा ये वो 6th फंडामेंटल राइट है, ठीक है। 5 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो ये हमारा 6th फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब देखो इसमें ये कहता है कि भाई जो रेमेडीज़ दी गई हैं, कुछ क्या रेमेडीज़ दी गई हैं, देखो मान लो कल को आपका जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो हर्ट होता है, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट जो है वायलेट किया जाता है स्टेट द्वारा। स्टेट को कौन कौन आ गया, चाहे वो नेशनल लेवल पे ले लीजिए या तो आप जो है वो स्टेट लेवल पे लीजिए, ठीक है। अगर आपका नेशनल लेवल पे जो है वो चीज़ें हर्ट हो रही हैं, आपका फंडामेंटल राइट हर्ट हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 32 के तहत, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो 5 जो है वो रिट्स जो है वो इशू कर सकता है। अब रिट्स क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर आपका ये नेशनल लेवल पर हर्ट हो रहा है, अगर मान लो
वही सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर मिल गई, बट 226 के तहत हाई कोर्ट के पास भी पावर की गई है किसकी, 5 रिट्स जो है वो इशू करने की। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पावर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई आपको। अब देखो 32 में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट थे। ठीक है, 5 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 6th फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है आपका, 6th फंडामेंटल राइट है। और इस 6th फंडामेंटल राइट में एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 32। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे वाला आर्टिकल, आर्टिकल 226, ये मैंने खुद ऐड किया है यहाँ पे क्या बताने के लिए। देखो अगर आपको पूछ लेगा कि भाई क्वेश्चन में आ गया कि भाई आर्टिकल 32 तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किसकी, 5 रिट्स इशू करने की, तो बताओ हाई कोर्ट के पास किस आर्टिकल के तहत जो है पावर है रिट इशू करने की। तो आपको सीधा सीधा पता लगेगा कि कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 226, जो एम्पावर करता है किसको, हाई कोर्ट को 5 रिट्स जो है वो इशू करने के लिए। अब ये रिट्स क्या होता है, ठीक है, रिट्स क्या होता है उसके बारे में उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ ये बता दूं कि मान लो अगर आपको आर्टिकल याद नहीं आ रहा, ठीक है, आपको सिर्फ पता था कि अच्छा यार मेरे को सिर्फ 32 आर्टिकल का पता है, बाकी जहाँ से जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या रिट इशू करने की, मेरे को ना हाई कोर्ट का याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो हाई कोर्ट का कैसे याद करना है, 3 × 2 क्या होता है 6, 2 का 2 आ गया यहाँ पे, 3 से छोटा क्या होता है 2। ठीक है, तो ऐसे याद रखना 226। ठीक है, ट्रिक क्या है, छोटी सी ट्रिक क्या है, याद रखना है सही। अब रिट्स के बारे में देखो, रिट्स 5 तरह की होती है, कौन कौन सी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्रेडिटो, ठीक है, और क्यू वारंटो। ठीक है, अब ये होती क्या है, देखो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि भाई टू हैव द बॉडी। अब टू हैव द बॉडी से मतलब क्या हुआ, देखो कोर्ट के पास ही पावर है। ठीक है, अगर कोई पिटिशनर है, अगर कोई पिटिशनर जो है वो पिटिशन दाखिल करता है, ठीक है, और मान लो जो है वो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, तो उसको यहाँ पे क्या करना है, उसको कोर्ट के सामने पेश करना है इन पर्सन। ठीक है, अब अगला चलते हैं, अगला यहाँ पे कह रहा है कि मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या, भाई वही कमांड। ठीक है, तो जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट कोर्ट जो है वो डिमांड करता है, ठीक है, कमांड करता है किसको, पब्लिक ऑफिशियल को, ठीक है, टू परफॉर्म सम ड्यूटीज़। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या हो गया, टू हैव बॉडी, बॉडी। ठीक है, उसके बाद आपका इसका बॉडी याद रखिए, मैंडेमस का याद रखिए कमांड, ठीक है, वही कमांड। ठीक है, प्रोहिबिशन का याद रखिए टू फॉरबिड। ठीक है, क्या मतलब, टू फॉरबिड, बॉडी, टू हैव बॉडी, वही कमांड, कमांड कौन करता है, कोर्ट कमांड कर रहा है किसको, ऑफिशियल्स को। ठीक है, प्रोहिबिट क्या करता है, कोर्ट प्रोहिबिट करता है किसको, लोअर कोर्ट्स को। लोअर कोर्ट्स को क्यों प्रोहिबिट करता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों प्रोहिबिट करता है, या हाई कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट होंगे उनको क्यों प्रोहिबिट करेगा। मान लो कोई केस है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि यार जो ये कोर्ट लोअर कोर्ट जो है वो केस देख रहे हैं ना, ये इनके उनके जुडिशरी में नहीं आता। ठीक है, इनकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता, तो वो क्या करेंगे, उस केस को जो है अपने पास ट्रांसफ़र करवा लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसका मतलब, उसका प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है। कुरेशो का मतलब क्या होता है कि टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, मान लो कोई आपका लोअर कोर्ट है, ठीक है, अब लोअर कोर्ट के पास जो है वो मान लो कोई केस है, ठीक है, लोअर कोर्ट हो गया, कोई ट्रिब्यूनल हो गया, उसके पास कोई केस है, और जो हायर कोर्ट होगा ना, हायर कोर्ट में क्या, चाहे वो हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इनको कहेगा कि भाई जो आपके पास पेंडिंग केस है ना, उसको जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र कर दो, या तो उस केस के रिलेटेड आपने कोई जजमेंट दी है तो उस जजमेंट को क्या करो, स्क्वैश कर दो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये क्रेडिटो का मतलब होता है। ठीक है, तो टू बी सर्टिफाइड का मतलब, ठीक है, इससे भी सी याद रखिए। ठीक है, और क्यू वारंट का मतलब क्या हो गया, बाय वट अथॉरिटी और वारंट, बाय वट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब हो गया जो ये कोर्ट जो है वो इशू करता है इंक्वायर करने के लिए किसी भी केस की जो है वो लीगैलिटी। ठीक है, देखो अब मान लो किसी बंदे ने जो वो कोई क्लेम किया, उसने कहा कि भाई फ़लानी फ़लानी चीज़ जो है वो मेरे को, ये आपका मान लो मेरे को कोई डिपार्टमेंट है, मेरे को ऐसे से वहाँ पे जो है वो इशू फेस कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस ऑफिस को, उस पब्लिक ऑफिस को जो है वो ये रिट इशू करेगा और उनसे पूछेगा कि भाई जो आपने काम किया है वो किस अथॉरिटी से किया है और किस जो है वो लीगल मेथड से जो है आपने इसको काम किया है। तो ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि क्या, बी, बी से क्या आ गया, बॉडी, टू हैव बॉडी, सी से क्या आ गया,
वही कमांड एफ से क्या आ गया, टू फॉरबिड, सी से क्या आ गया यहाँ पे फिर से सर्टिफाइड, ठीक है, टू मतलब कि टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, और क्यू वारंटो का क्या आ गया, बाय वट अथॉरिटी, ठीक है, बाय वट अथॉरिटी। तो यहाँ से क्या बना, बी सी एफ सी ए डब्ल्यू कह लीजिए या अथॉरिटी कह लीजिए, ठीक है, या वारंट कह लीजिए। तो आपका ये आर्टिकल 32 हो गया, ठीक है। अब आर्टिकल 32 में ना इसके सब पार्ट्स भी आते हैं। क्या सब पार्ट हैं, देखो, जो आर्टिकल 32 है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉ नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई लॉ जो है हमने अपने 9th शेड्यूल में रखा है, ठीक है, किस में रखा है, 9th शेड्यूल में रखा है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो उस पर जो है वो क्या होगा, उस पर आपका ये जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये पहले की बात थी, बट अब क्या होता है कि बेशक आपने जो है वो आर्टिकल 30 शेड्यूल 9 में जो है वो अपना आर्टिकल रख लिया है, बट उस पर जो है वो जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। सिंपल इतना याद रखिए कि भाई आर्टिकल 32 जो है वो लॉ की बात करता है कि कोई भी लॉ जो होगा आर्टिकल 32 के ए के तहत, उस पर जो है वो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो आपका जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं होगा, ठीक है। सिंपल इतना बात याद रखिए। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है कि कोई भी लॉ जिसको जो है जुडिशरी जो है वो रिव्यू करती है, चाहे वो उसकी खुद की जजमेंट हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का लॉ हो, ठीक है, जो पार्लियामेंट से पास किया हो, ठीक है। अब आर्टिकल 32 कहता है, 33 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्स, ठीक है। अब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी राइट को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं जो इस पार्ट में दिया होगा है, ठीक है। सिंपल ये बात याद रखिए। अब आर्टिकल 34 क्या कहता है, कहता है रिस्ट्रिक्ट करना राइट को, ठीक है। क्या रिस्ट्रिक्ट करना, देखो आर्टिकल 34 के बारे में सिंपल बात याद रखिए कि ये मार्शल लॉ के बारे में बात करता है, ठीक है। जब भी मार्शल लॉ लगेगा, मार्शल लॉ लगेगा हमारे नेशन में, तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। जैसे हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते थे, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं आपके, ख़त्म हो जाते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 35 बात करता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। कहता है कि भाई जो भी, कहते हैं कि फंडामेंटल राइट जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें जो कोई भी लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है, वो आपके पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। स्टेट के पास कोई पावर नहीं है किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने की, ठीक है। सिर्फ किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 35, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना से याद रखिए कि भाई आपको इन, देखो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 34 क्या है, मैक्सिमम आपको 32 और 34 से ही पूछा जाता है, इन खासकर जो आपका 6th फंडामेंटल राइट है। बाकी आपको यहाँ से इतनी डिटेल में नहीं पूछता। हाँ, एक चीज़ आप ये याद रखिए कि आर्टिकल 226 जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें जो है वो आपका जो 5 रेट्स है ना, वो इसी की बात करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आज हमारा फंडामेंटल राइट ख़त्म।